अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द कश्मीर स्टूडेंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़बरीन आशिक। आज हम ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जी मैं मुखातिब हूँ डॉक्टर नसीर इकबाल से, जो रजिस्ट्रार है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। इनसे हम कुछ यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले द कश्मीर स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत इस्तेमाल। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने रिसेंटली एज रजिस्ट्रार का ओहदा आपने संभाला, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? क्योंकि स्टूडेंट्स को भी कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें होती है। टीचिंग फैकल्टी की अगर बात करें और नॉन टीचिंग फैकल्टी की अगर बात करें, उनमें बहुत सारी उम्मीदें होती है। As you know that I have recently, in the sense that कि 2 महीने पहले I have taken over as a registrar of the university, but Alhamdulillah, before this I had one tenure in IUST. I was there as a registrar for 3 years, more than 3 years. Basically, I am a professor of physics from the University of Kashmir. So I had a very good observation how to handle the university, and that I have done, mashallah, in IUST. So I have come with a success. So अगर आप IUST में भी अभी किसी से बात करोगे, whether it is the teaching faculty or the non-teaching or the students, तो माशाल्लाह I am sure that कि everyone would spoke good. तो हाँ, कमियाँ तो रहती है। कमियाँ जो है, they are the part of the life. Unless and until you will not have those gaps, you cannot improve. Fine. So but since University of Kashmir is a very bigger institute, so यहाँ challenges बहुत ज़्यादा है। So but mashallah, I am sure that I will be able to come up with all those challenges. अब आपने priority की बात कही है। priority मेरे पास एक नहीं है। I am working simultaneously on number of priorities. बिकॉज अगर मैं बोलूँगा मैं सिर्फ इस सेक्टर में काम करूँगा, दैट मीन्स आई एम नेगलेक्टिंग द अदर सेक्टर्स। देखिए, मेरी जो डिफिनेशन है ना यूनिवर्सिटी की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई डिफाइन यूनिवर्सिटी एज द यूनिवर्सिटी इज फॉर द स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी इज बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द university. If you don't have students, you cannot say that I have a university. Even if I have a big big line of professors or big line of officers, लेकिन students नहीं होंगे तो it doesn't mean at all. So my priority is, yes, the top priority is the students. So students के जो genuine issues है, so I am trying my best to come up to the expectations of the student fraternity, whether this is to provide them the good facilities in the hostels, to provide them the good infrastructure in the departments, or to provide them the good facility in the library. आप बहुत खुश होंगे that we have already initiated some big projects for the students. Like earlier we used to have this center for career placement in that center. So I have started with the concerned director. We are working for this day and night, so that I wish that कि मेरे जो कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर जाना तो ठीक है, but why they will spend huge amount of money and staying in Jammu or Delhi? Why I will not provide them the good facility here? So like that, hostels में अच्छा जो उनके जो facilities है उनको upgrade करना, लैब्स उनको जो साइंस डिपार्टमेंट्स के लैब्स है, इनफैक्ट नाउ एवरी डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन लैब, so whether it is the humanities or it is the science, so to provide the infrastructure to that. So students are my topmost priority, and then the other priorities will follow accordingly. सर, अगर हम बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करें, या इंट्रोडक्शन 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या अगर हम डिग्री और डिजाइन और डिग्री की बात करें, इसमें सबसे बड़ा इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ा रोल कश्मीर यूनिवर्सिटी का रहा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट, इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने में कितने हद तक कामयाब हुई और क्या क्या चैलेंजेस आए? मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कोई नया चीज इम्प्लीमेंट करने में तो देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस। अनलेस एंड अनटिल देयर इज नो चैलेंज, यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट अपग्रेड इट। So, mashallah, with the dynamic leadership of our Honorable Vice Chancellor Professor Nilofar Khan Sahiba, so these programs have already been implemented. Like your design your degree, we have the design your degree courses course start already. The students have already taken the admission. There was a huge response of the students. So similarly, for example, आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, इट्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, it is the policy that is to be implemented in different segments. You cannot do that कि मैंने 6 महीने में पूरा new education policy implement किया है, but we have been very successful in implementing, and then we are very thankful to the government of J&K
to the Higher Education Council for guiding us properly and giving us infrastructure wise good things for these new courses. Yes, और एक चीज मैं जरूरी यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, दिस इज नॉट नाउ a state level or a national level. This is a world level initiative that we need to have the more incubations, we need to have the more skilled courses. तो उसके लिए New Education Policy has a mandate to have the more skilled courses, and you will be happy. आपने देखा होगा that in just last 1 or 2 months we had so many series of skill development programs for these students, and not only for the students but for the people who are not even directly connected with the university. So because university का एक अहम रोल यह होता है कि we have to be connected with the society. सोसाइटी के साथ कनेक्ट करने के लिए हम उनको गाइड करेंगे, उनको 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 we will be a mentor to them, their programs, their innovation, so that जो आजकल एक वो I am of a different opinion. देखिए, jobs are not an issue. The issue is that we need to search them. Jobs are there, but we need to search them. अब देखिए, घर में बैठ के, for example, you are a professional, you have come out from your home and then you are doing your work. अगर आप ये नहीं करोगे तो आप घर में बैठोगे. Same is the case here. So I would suggest that jobs का कोई issue नहीं है. The students have to come out. They have to work for their ideas, implement the ideas. We are here to support them. In fact, we can support them not only by means of our these training programs, but we can support them financially, and that is a mandate with us, so that the people start their own innovations and entrepreneurship units. Instead of having a job for an individual, I shall be able to that if as an individual I shall be able to give jobs to my 10 people who will work with me. वही है कि हमें होशियार होना है. वो सोने का टाइम खत्म हो गया है. ठीक है, we have a different now the world is moving very fast. We need to catch that fast rate of the world. सर आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की. तो सर एक अहम सवाल है, काफी टाइम से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में ड्यूअल कोर्सेज पर कोई नोटिफिकेशन निकाले. हालांकि यूजीसी ने 2 साल पहले ड्यूअल कोर्सेज को ग्रीन सिग्नल दिए थे. अब चूंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हाल ही में एक नोटिफिकेशन निकाली गई जिसमें बताया गया स्टूडेंट्स अब 2 कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं. इस बारे में सर मजीद हम आपसे जानना चाहेंगे. You will be happy to know that now these things have been initiated by the डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन. सो आप पहले तो आपको एक जगह से इनिशिएट करना है, देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन थिंक फॉर द बिगर थिंग्स. सो बट इट्स ऑलरेडी इनिशिएटेड. सर क्या ड्यूअल कोर्सेज में डिप्लोमा भी आता है? मसलन अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर है डिस्टेंस में मोड में मास्टर्स डिग्री कर रहा हो, क्या साथ साथ वो डिस्टेंस मोड से डिप्लोमा कोर्स का एडमिशन ले सकता है? देखिए, दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप एक के ऊपर ही फोकस ना करो, आप मल्टी कोर्स पे फोकस करो. अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं, आप कहीं और ये जो है कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिएगा. सो अब इसमें देखिए, मैंने पहले भी बता दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इट इज नाउ कमिंग अप. It has been implemented. It is being implemented in different levels. So by changing different levels, नई चीजें हमें जब तक ना आप कुछ implement करोगे तब तक आपके माइंड में आइडिया नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है. So उस करने के लिए आपके न्यू इनिशिएटिव्स की जरूरत है, and those things are accordingly being done with the passage of time. सर एफिलेटेड कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल से CUET में हिस्सा लेती है. क्या आने वाले वक्त में कश्मीर यूनिवर्सिटी PG एडमिशन के लिए भी CUET पे स्विच कर सकती है? क्या कोई इरादा है आगे? इरादा तो है, बिकॉज देखिए, इफ देयर इज अ नेशनल लेवल पॉलिसी यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. यू कैन नॉट से दैट मैं नहीं मानूंगा. अब जब तक आप तैयार होंगे सो तब तक आप इसको एक वो कंपनसेट कर रहे हैं, बट श्योरली एक टाइम आएगा वी विल हैव टू डू इट. सर सैटेलाइट कैंपस की अगर बात करें, साउथ टू नॉर्थ कैंपस की, वहाँ के स्टूडेंट्स की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनके अपने कैंपस में एग्जामिनेशन ब्लॉक होना चाहिए क्योंकि उनको छोटी छोटी इश्यूज के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी का रुख करना पड़ता है. देखिए, दैट इज जैसे व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग टू मी इनिशियली, सो अब मैंने प्रायोरिटीज की बात नहीं की. दैट इज वन ऑफ माय प्रायोरिटी. आई विल लाइक दैट कि अगर नॉर्थ कश्मीर में हमारा कैंप से या साउथ कश्मीर में हमारा कैंप से जो वहाँ के छोटे छोटे इश्यूज है, इट शुड बी रिजॉल्व देयर, नॉट दैट कि स्टूडेंट 500 रुपया खर्च करके ही विल कम टू द यूनिवर्सिटी एंड रिजॉल्व हिज. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ नोडल ऑफिसर्स का एक वहाँ पे नया तो नहीं करना है, कोई who will be very responsive, उनको एक मंडेट दूंगा दैट वो छोटे छोटे चीज जो स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया ना, वी हैव टू बी फॉर द स्टूडेंट्स. जैसे आजकल हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, भाई मुझे वेरिफिकेशन चाहिए, हम उसको बोलते हैं कि आप ये रखो और 5 दिन के बाद आओ. ठीक है,
व्हाई नॉट डू इट द सेम लेवल? अगर नॉर्थ कश्मीर में कोई आएगा, उनको बोलेंगे आपके पास एक ग्रीवेंस है, मुझे लिख के दे दो, गिव मी 1 वीक में रिजॉल्व करके उसको बोलेंगे रिजॉल्व है, सो वी हैव सेंट इट इन योर मेल और समथिंग लाइक दैट, सो दैट इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग। सर मतलब इरादा है आगे वो सहूलियत। श्योरली दैट्स द प्रायोरिटी। सर आखिरी सवाल मेरे से ये रहेगा कि कुपवारा कैंपस की अगर बात करें, उनमें कुछ अभी लिमिटेड कोर्सेज है, 2-3 कोर्स, सर क्या आगे और कोर्सेज ऐड करने का इरादा है? देखिए यू नो योरसेल्फ कि कैंप्स को एट अ टाइम स्टार्ट करना है, इट्स नॉट सो इजी, ठीक है। वी हैव स्टार्ट विद कपल ऑफ प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट्स कमिंग अप, थोड़ी सी रोड का इशू था, वो भी रिजॉल्व हो गया। Maybe very soon you can see that a new number of courses will be added up, and the new infrastructure will be there. It has to be upgraded. It is in the process of upgradation. And then आजकल के ज़माने में I'm happy to share that everyone wants to go to the university, go to the college, go to the school. ठीक है? Now the government has been so much kind that they give you the facilities, but then you have to implement them. As a registrar, it's my mandatory. I have to be responsive for that. Whatever the support I am getting from the government, I have to take the support and give to the student fraternity. So this I am inshallah rahman I am committed to do it. और ये है कि क्योंकि आपके माध्यम के जरिए मैं एक स्टूडेंट्स को एक पैगाम देना चाहता हूँ दैट वेरी सून, मे बी इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 months, लाइक इन जामिया मिलिया लेवल टाइप पे, जैसे वहाँ पे है एक कोचिंग फैसिलिटी है फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए। तो हमारा स्टूडेंट यहाँ उसका एक ड्रीम रहता है, मैं 6 महीने के लिए तैयारी करूँगा सो दैट जामिया की कोचिंग में हिस्सा लूँगा, अगर क्वालिफाई हुआ मैं 6 महीने की ट्रेनिंग वहाँ रहूँगा। I am committed to provide the similar and much upgraded facility here in the Kashmir University camps. तो स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए? देखिए, we need to compete at the world level. We don't need to compete at the local level. Because मैं चाहता हूँ जो मेरा बच्चा पास आउट हो, he should go and work anywhere in the world, not only in the country or somewhere else. We have to be very responsive and open to work anywhere in the world. सर नाज़रीन, ये हमने आप तक यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ अहम मालूमात आप तक पहुंचाई। सर द कश्मीर स्टूडेंट से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much.